ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। किसी भीड़ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जाना, किसी इकट्ठ ਦੇ ਵਿੱਚ पार्टिसिपेट नहीं करना। ये इसी फैमिली का एक वायरस है जो अभी पहली बार जिसके बारे में हमें पता चला है, इसीलिए इसको नोवल कहा जा रहा है क्योंकि ये पहली बार हमें ये दुनिया में आया है। ये फैल बहुत ज़्यादा रहा है और इससे लोगों की जो मॉर्टेलिटी रेट हम जिसको कहते हैं, इससे डेथ रेट हमारा कॉमन कोल्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। क्या किसी ऐसे आदमी जिसके में कोई सिम्टम्स नहीं है उससे मेरे को कोरोना होने के चांसेस हैं या नहीं हैं? अगर 1 मीटर की दूरी में है तो ये कोरोना वायरस स्प्रेड करने का चांसेस कम है। कोल्ड एंड फ्लू के सिम्टम्स हैं तो क्या उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि घर में इलाज कर लेना चाहिए? कोल्ड एंड कफ जो है एक ये कोरोना वायरस या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो जाता है, जो कि आजकल वैसे भी सीज़न में कॉमन है। अपने सिटीजन्स ने पूछा है कि कोरोना होने का मैनू खतरा है। ये सिम्टम्स की ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ हैं, कुछ सुन रहे हैं। इसी चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आज ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡਾਕਟਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, CMC ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, DMC ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਪੋਲੋ SPS ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਯੁਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ DC ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਡ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। DC ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੀਆਈਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਵੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਜੀਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਮਿਲਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਸਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਫਿਗਰਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਡਿਕੁਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ਼ਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ DC ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਗਾਵਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਐਫਰਟਸ ਬਾਈ ਆਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰਸ ਆਫ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਯੁਵਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਸ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ OPDs ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਸਿੰਗਲ SPS ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਸਿੰਗਲ SPS हॉस्पिटल लुधियाना। कोरोना वायरस क्या होता है, कोरोना वायरस हमें पहले से पता है या नहीं? कोरोना वायरस के बारे में हमें पहले से पता है। ये जो हमें कॉमन कोल्ड, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियां होती हैं, ये कोरोना वायरस भी करता है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कॉमन फ्लू या सर्दी जुकाम कहते हैं।
कई सारे कोरोना वायरस इसको करते हैं, तो ये हमें पहले से पता है। पर कोविड-19 जो इस टाइम जो कोविड-19 करके जो वायरस आया है, ये इसी फैमिली का एक वायरस है जो अभी पहली बार जिसके बारे में हमें पता चला है। इसीलिए इसको नोवल कहा जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार हमें ये दुनिया में आया है। ये हमें सिम्टम्स हमें वही सारे करता है सर्दी जुकाम खांसी वाले, पर ये इनकी सीवियरिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा होती है। ये फैल बहुत ज़्यादा रहा है और इससे लोगों की जो मॉर्टेलिटी रेट हम इसको कहते हैं, इससे डेथ रेट हमारा कॉमन कोल्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। एक सिम्टम्स भी इसके कॉमन कोल्ड जैसे होते हैं, लेकिन उसकी सीवियरिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम, बुखार के साथ में फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है और लोगों को बॉडी एक होता है इसमें। तो जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो आप उसके लिए तुरंत अपने किसी स्वास्थ्य संस्थान में जाएं, किसी हॉस्पिटल में इसके लिए तुरंत जाएं और इसको इन्फॉर्म करें। ये इन्फॉर्म करना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपसे, आपकी फैमिली में और आपकी फैमिली से जिस भी लोगों को आप मिलोगे उनमें फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक और सवाल हमारे पास आ रहा है कि ये इसके कितने दिन तक किसी पेशेंट से मिलने के बाद में ये कितने दिन तक फैल सकता है, कितने दिन में हमारे इसके सिम्टम्स हमें आ सकते हैं। तो जब हम किसी रोगी से इसके संपर्क में आते हैं, उसके नेक्स्ट डे से 2 से 14 दिन तक के बीच में हमारे अंदर इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। किसी किसी को ये सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं और किसी किसी को इसके सिम्टम्स नहीं के बराबर आते हैं। तो एक तरह से कुछ लोगों को, जैसे हम रूटीन में कोविड-19 के आने से पहले हमें कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम होता था, कोई पेशेंट्स बिल्कुल उसी तरह से निकल सकते हैं और किसी किसी को इसकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़े और उसको आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़े। एक और सवाल हमारे पास आ रहा है कि हमें ये एनिमल से हमें ये फैलता है या नहीं। जो हमारे नॉर्मल कोरोना वायरस से जो हमें कॉमन कोल्ड होता है उसको हम ह्यूमन कोरोना वायरस कहते हैं, पर ये लास्ट दिनों में जो कोरोना वायरस हमने जो फैल रहा है ये कहाँ से आया है एग्जैक्टली अभी तक हमें नहीं पता है। पर एनिमल से ह्यूमन में और ह्यूमन से एनिमल में फैलने की अभी तक हमें कोई मिला नहीं है हमें कि ये एनिमल से फैल रहा है। तो लेकिन हमें काफ़ी सारे क्लूज मिले हैं कि ह्यूमन से ह्यूमन में डेफिनेटली ये फैल रहा है। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने परिवार को, अगर हमें सिम्टम्स आते हैं तो हम अपने परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स को बचा के चलें और जैसे ही हमें लगे कि हमें इसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम खुद को आइसोलेट करें और उसको तुरंत रिपोर्ट करें। इसमें लोगों के क्वेश्चंस हमारे पास लगातार आ रहे हैं और एक हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या किसी ऐसे आदमी जिसके में कोई सिम्टम्स नहीं है उससे मेरे को कोरोना होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। क्वेश्चन लोगों ने पूछा है कि जो फ्रूट और वेजिटेबल वो लोग खरीदते हैं वेंडर वगैरह से, क्या वो इमीडिएटली खा सकते हैं कि कुछ देर उनको रखना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए हम लोग चलते हैं अपने डॉक्टर लिडिया, जो कि सीएमसी हॉस्पिटल में कोरोना की एक्सपर्ट हैं, उनसे पूछते हैं कि इन क्वेश्चंस का जवाब जानते हैं। डॉक्टर लिडिया। गुड इवनिंग। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड। तो एक से दूसरे लोग को कैसे स्प्रेड होता है। इट इज़ मेनली अ रेस्पिरेटरी पैथोजन, मतलब वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो। सो व्हेन अ पर्सन कॉफ्स, वो कॉफ में ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो एक से अगर इफ इट फॉल्स ऑन द अदर पर्सन देन दिस वायरस विल स्प्रेड। अगर 1 मीटर के दूरी में है तो एक कोरोना वायरस स्प्रेड करने का चांसेस कम है। एंड इफ द पर्सन इज कॉफिंग, अगर वो ड्रॉपलेट्स जाके सरफेस में सेटल हो जाए एंड अदर पर्सन विदाउट एनी प्रोटेक्शन अगर वो वाले सरफेस को अगर टच करके अपने फेस और हैंड्स पे इफ दे टच द फेस देन अगेन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज मोर। दैट इज हाउ इट स्प्रेड्स। इट्स मेनली अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। Then the next question is can कोरोना वायरस, अगर दूसरे पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है फिर भी विल वी गेट एनी इन्फेक्शन और नॉट। अगेन मैंने अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि इट्स अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सो अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर ड्रॉपलेट्स हमारे फेस के ऊपर नहीं गिर रहा है, दिस इन्फेक्शन इज नॉट गोइंग टू स्प्रेड।
एंड एक और क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ लॉन्ग डज द वायरस सर्वाइव ऑन द सर्फेसिस? अभी लेटेस्ट स्टडीज हैव शोन दैट फ्यू आवर्स से लेके 3-4 डेज तक सर्फेसिस में रहता है. मैक्सिमम प्लास्टिक एंड स्टील में रहता है, मेनली फॉर 3 days. सो इट्स ऑलवेज सेफर टू वॉश हैंड्स बिफोर टचिंग योर फेस एंड हैंड्स. अगर कॉफ भी करते हैं, हाथ हैंकरचीफ हमेशा यूज़ करना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए. एंड इफ यू टच द सर्फेस, इमीडिएटली हैंड वॉश. हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट फॉर 20 seconds वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर और एन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर. क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं कि अगर किसी को कोरोना कोल्ड और फ्लू वगैरह के सिम्टम्स हैं, कोल्ड एंड फ्लू के सिम्टम्स हैं, तो क्या उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि घर में इलाज कर लेना चाहिए? क्वेश्चन आया है कि किसी के फेसेस यानी फीसेस यानी कि उसके जो बाथरूम वगैरह है उससे इस डिज़ीज़ को क्या वो कैच कर सकते हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हम लोग चलते हैं डॉक्टर राजेश महाजन, जो कि डीएमसी के अंदर कोरोना से रिलेटेड सारे मसले को देखते हैं. तो डॉक्टर साहब, आप हमें इसके बारे में ज़रा बताएं. नमस्कार. जो पहला क्वेश्चन सर ने पूछा है कि अगर किसी को कोल्ड एंड कफ है तो उसको टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. कोल्ड एंड कफ जो है एक ये कोरोना वायरस या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो जाता है, जो कि आजकल वैसे भी सीज़न में कॉमन है. बट अगर आपके किसी भी रिलेटिव्स, किसी भी फ्रेंड को किसी को कोरोना वायरस डायग्नोज हुआ है तो डेफिनेटली आपका टेस्ट होना चाहिए, पहली चीज़. दूसरी चीज़, अगर किसी को माइल्ड सिम्टम है तो उसको क्या करना है, उसमें उसने अपने आप को घर पे आइसोलेट करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चाहिए और कुछ नहीं. पर अगर कुछ लोग जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, शुगर है, कोई अंदर फेफड़ों की बीमारी की दिक्कत है, या अगर 60 साल से ज़्यादा उम्र की तकलीफ़ है, या कोई अगर स्टीरॉयड्स ले रहा है, और या कोई अगर कोई अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाइयाँ ले रहा है, उनके टेस्ट ज़रूर होने चाहिए. जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कि क्या फीसिस से हमारे को ये बीमारी हो सकती है. अभी तक हमने जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स देखे हैं उसमें पेट का दर्द और लूज मोशंस लोगों को लग जाते हैं. अगर किसी एक ऐसे मरीज़ में जिसको डायरिया लगा हुआ है, उससे अगर आपका क्लोज कंटैक्ट है तो आप एक हाई रिस्क कंटैक्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें आप लोगों को अपने आप को आइसोलेट करना है. अभी तक हमारे पास लिटरेचर, ऐसा कोई मेडिकल लिटरेचर में नहीं है जिसमें हम ये कहें कि फीसिस से ये कोरोना वायरस स्प्रेड होता है. पर एक चीज़ है कि ये फीसिस में पाया गया है जिन लोगों को पेट के सिम्टम्स थे. अगला क्वेश्चन था कि हमारे को कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को नहीं करनी चाहिए. जो इस प्रोग्राम की शुरुआत में सर ने कहा था कि हर किसी को अपने हाथ धोने चाहिए, आइदर सोप एंड वाटर के साथ 20 सेकंड के लिए या हैंड सैनिटाइजर के साथ. उसका बेसिक रीज़न है कि जैसे मैडम ने अभी बताया कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के साथ स्प्रेड होता है. तो अगर आपने हाथ अपने किसी भी ऐसे सरफेस को टच किए हैं और उसके बाद अपने फेस को, आइज़ को और नोज़ को टच करते हैं, तो ये आपको ये बीमारी हो सकती है. तो इसका मतलब है कि अपने फेस को बार बार टच ना करिए. किसी भी चीज़ को खाने से पहले अपने हैंड को अच्छे से साफ करिए. जब भी अपने पब्लिक प्लेस पे जाना है तो बिना फेस मास्क के मत जाइए. अगर आपको कोई खांसी जुकाम है तो अपने आप को घर पे आइसोलेट करिए, कोई भी पब्लिक प्लेस, और अननेसेसरी ट्रैवल मत कीजिए. जो लास्ट क्वेश्चन है कि क्वारंटाइन क्या है, क्यों लोग डरते हैं, क्यों हम इतना मीडिया में सोचते हैं, सुनते हैं कि लोग क्वारंटाइन को रेजिस्ट कर रहे हैं. क्वारंटाइन का मतलब है कि अपने आप को आइसोलेट करना. इन केस अगर आप किसी ऐसी जगह से आए हैं, बाहर से आए हैं जहाँ पे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला हुआ है, या आप किसी जगह से आपके किसी रिलेटिव को कोरोना वायरस डायग्नोज हुआ है, तो आपने अपने आप को 14 दिन के लिए घर के अंदर रखना है. उसका ये मतलब नहीं है, उसका एक बेसिक आइडिया है कि आप ये डिज़ीज़ दूसरे बंदे को, अगर आपको एक्सपोजर हो गया है तो कल आपको एसिम्प्टोमेटिक है तो आपसे ये डिज़ीज़ दूसरे को हो सकती है, तो आपने दूसरे को नहीं फैलानी, तो इसलिए अपने आप को आइसोलेट करना है. तो ये बेसिकली क्वेश्चन का आंसर है कि क्वारंटाइन में अपने आप को आइसोलेट करना है और इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आप पब्लिक की मदद कर रहे हैं. डॉक्टर साहब, एक आपके लिए क्वेश्चन आया है कि हाउ आर डॉक्टर्स क्योरिंग कोविड पेशेंट्स, HIV, एंटीवायरस और SCQS
ਐਜ਼ੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਆਰ ਦੇ ਹੈਲਪਫੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ? कोविड पेशेंट्स के लिए हमने इसकी अलग अलग कैटेगरीज की हुई हैं। पहली कैटेगरी सिंपल माइल्ड जिसको कहते हैं, जिसमें एक किसी को खांसी जुकाम और हल्का सा बुखार है, उसके लिए ट्रीटमेंट सिम्प्टोमेटिक है। आप कोई भी अपने डॉक्टर से बात करके जैसे एजिथ्रोमाइसिन, ऑगमेंटिन जो दवाइयाँ हैं वो ले सकते हैं। जिन लोगों को खांसी जुकाम के साथ सांस की दिक्कत है, डेफिनेटली उसमें अब HCQ जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पूछी जा रही है और एजिथ्रोमाइसिन पूछी जा रही है, वो आप ले सकते हैं। पर अभी तक हमारे पास अगर आप कहोगे कि बहुत क्लियर कट रोल है, वो नहीं है। जब भी आपने ये दवाई लेनी है, क्योंकि इसके साथ हार्ट की दिक्कतें ज़्यादा पाई गई हैं, लोगों में सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस बढ़ा है, तो ये विदाउट मेडिकल कंसल्ट आपने कोई भी दवाई नहीं लेनी। इसमें कोई एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है। जो HIV की ड्रग्स हैं वो भी अब कुछ स्टडीज़ आ रही हैं जिसमें उसका फ़ायदा बताया गया है, कुछ में इसका नुकसान बताया गया है। तो विदाउट एनी मेडिकल कंसल्टेशन आपने कोई भी ड्रग नहीं लेनी। ठीक है। जसनूर आहूजा ने पूछा है कि एक की वायरस न्यूज़पेपर टच करन नाल फैलदा है। इसी तरीके नाल संजू धर्मानी ने पूछा है कि इस दी जे कोरोना दी जल्दी डिटेक्शन हो जाए तो की ट्रीटमेंट दे विच कोई फ़ायदा होंदा है। कुछ अपने सिटीजनस ने पूछा है कि कोरोना होने का मैनू खतरा है। इन्हां सारे क्वेश्चनस का जवाब आपां लवांगे अपने डॉक्टर राजेश बग्गा जिहड़े कि सिविल सर्जन लुधियाना है। डॉक्टर साहब, इन्हां क्वेश्चनस का तुसीं सानूं जवाब दिओ। नमस्कार जी, मैं लुधियाना वासियों को दसना चाहना कि ये जिहड़ा करोना वायरस है ये अखबार के टच करने नाल नहीं फैलता, क्योंकि जिहड़ी साडे कोल अखबार आती है वो तंदुरुस्त व्यक्ति सानू दे रहा। सो इस करके बिल्कुल घबराउण की लोड़ नहीं है। असी अखबार पढ़नी है। जे तुसी बहुत वहम करते हो अखबार पढ़न तो बाद हैंड वॉश कर लो प्रॉपरली विद सोप एंड वाटर, पर अखबार के थ्रू ये फैलता, ये गलत है। सानू बिल्कुल घबराउण की लोड़ नहीं है, सावधानी लैण की लोड़ है। दूसरा सर सवाल की सीगा कि अपना मैनू कोरोना हो सकता है, पब्लिक पूछ रही है कि जे असी सारिया सावधानियां लईए तो सानू करोना वायरस नहीं लग सकता, नहीं हो सकता। उहदे विच सावधानियां की ने, सरकार वालों बहुत क्लीयर कट डायरैक्शनस ने। असी भीड़ भड़के वाली जगह ते नहीं जाना, असी इकट्ठ विच नहीं जाना। जे किसी नूं खांसी जुकाम होया वो अपने घर अपने मूँह ते नक ते रुमाल ਜਾਂ मास्क ला के बैठे ਜਦੋਂ तक वो ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि ये इदां दा मौसम है जिहदे विच सानू बहुत सारे होर वायरसेस ने जिहदे नाल जुकाम खांसी हो जाता है। सो जे किसी नूं इस सीजन दे विच जुकाम खांसी होया उहदा ये मतलब नहीं कि इहनूं करोना वायरस ही हो गया। ये बहुत बड़ा भरम है, भुलेखा है। असीं उस केस दे विच सस्पैक्ट करते हैं जिहड़े व्यक्ति नूं ये खांसी है, बुखार है ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ। एक गोल्डी भगत इन्होंने पूछा है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाई हार्ट पेशेंट, यानी कि ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। इसी तरीके नाल क्वेश्चन पूछा है कि एंटीबायोटिक इस कोरोना के इलाज ਲਈ लाभकारी ਹਨ। क्वेश्चन अपने सिटीजनस वालों पूछा गया है कि इस कोरोना ਲਈ कोई वैक्सीन वगैरह चीज़ है या नहीं। इन्होंने क्वेश्चनस के आंसर ਲਈ ਅਸੀਂ चलते हैं डॉक्टर विकास सीकरी जो कि SPS हॉस्पिटल लुधियाना के विच चैस्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विकास सीकरी इन्होंने तो क्वेश्चन के आंसर पूछते हैं। नमस्कार जी। जब पहला क्वेश्चन पूछा है कि हार्ट पेशेंट्स को इनका की प्रिकॉशन लेना चाहिए है,
ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ HCQS ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ਥ੍ਰੋਮਾਈਸਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ECG ਕਰਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ QTc ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਾਤਕ ਅਰਿਦਮੀਆਜ਼ ਵੀ ਥਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਵਾਇਰਸ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਜ਼ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਐਜ਼ਥ੍ਰੋਮਾਈਸਿਨ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ਥ੍ਰੋਮਾਈਸਿਨ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ HCQS ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਕੁਝ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਫਲੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਇਹ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ SARS, ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਸੀਵੀਅਰ ਐਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ, ਸੀਵੀਅਰ ਐਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ SARS ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ SARS ਇਸ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। COVID-19 ਇਜ਼ ਦਾ ਵਾਇਰਸ, SARS ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।